بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی. آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی بھی کی جائے گی. اس پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہید ارشد شریف قتل کیس کو لے کر اس کے جو جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا اس کیس پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے پاکستان کو آخری نوٹس جاری کر دیا. ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی عدم تکمیل اور التوا کے حوالے سے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور اوورال اس کے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. پینلسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ خان, بشارت راجہ, فیاض محمود اور سلمان انیس. تمام پینلسٹ کو میں ویلکم کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ثناء اللہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے 1997 کے ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم کی جائے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اقدام کی نوبت کیوں آئی ہے کہ ویکنسیز بڑھائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں نکی, ایک تو یہ بتائیں کہ یہ خبر آپ نے کہاں سے لی ہے اور اس کی کس نے تصدیق کی ہے؟ ابھی یہی کلیئر نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ کر لیا ہے, آپ کدھر فیصلہ ہوا ہے؟ یہ کسی نے اناؤنس کیا ہے؟ کسی نے, ہم نے لوگوں سے بات کی ہے, کوئی وزیر تصدیق کرنے کو تیار نہیں ہے. مطلب ہے کہ چیزوں کو اس انداز میں, جرنلسٹ ایز اے رپورٹر میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ اس قسم کی خبر کو کم از کم کوئی آن ضرور کرے. جب کوئی خبر کو آن کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک حکومت کنفیوژن کا شکار ہے, فیصلہ کوئی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو. دوسرا یہ جو جو قانون سازی کا کہا گیا ہے یہ خبر بھی غلط بات کس نے کہا؟ نہیں, قانون سازی تو کل بھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس میں پرائیویٹ ممبر بل آئے اور اس سے بھی لوگوں نے بنا دیا کہ جی حکومت لے کے آ گئی. اب پرائیویٹ ممبر ڈے جو ہوتا ہے نا منگل کو, اس میں پرائیویٹ لوگوں کے بل ہوتے ہیں. اب حکومت کانسٹیٹیوشنل آئینی ترمیم کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی اس وقت, ان کے پاس مطلوبہ تعداد ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ان کو جے یو آئی کو بھی شامل کرنا پڑے گا اور کوئی 30-40 جو ہے پی ٹی آئی کے ارکان کو بھی ملانا پڑے گا, پھر جا کے ان کی جا کے وہ تعداد پوری ہوتی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ باتیں ابھی ایز اے جرنلسٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک خاص کر عدالتی معاملات سے متعلق یا قانون سازی کے متعلق جب تک کوئی آن نہ کرے یا آپ کے پاس کوئی ڈرافٹ نہ ہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس خبر میں ابھی تک بھی پوری طرح سچائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو کل بھی وزیر قانون نے کہا, کل میں نے وزیر اطلاعات سے پوچھا, اب یہ بھی خبریں چلائی گئی کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے اور اس میں جناب نئے آئین اور قانون کے نئے چیزیں لائی جائیں گی. بھائی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اس میں صرف وہی بل آ سکتے ہیں جو نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی میں پیش ہو چکے ہیں یا وہ منظور نہیں ہو سکے, اور دوسرا کوئی نیا بل یا کوئی نئی آئینی ترمیم نہیں آ سکتی. تو یہ باتیں نکی, میں تو اس سوال کا جواب اس انداز میں نہیں دینا چاہتا کہ مقصد کیا ہے اور کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. یہ تو پھر بہت سارے سوالات ہیں. اس پہ جو ہماری بیٹ کرتے ہیں نا رپورٹر ہمارے بشارت راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میرے خیال میں ان سے اس کی کنفرمیشن لے لیتے ہیں کہ وہ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے. جی بشارت راجہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ فیصلہ تاحال نہیں ہوا اور یہ بات کہاں سے آئی کہ 23 تعداد کی جا رہی ہے 17 سے سپریم کورٹ کے ججز کی؟ نقی صاحب, ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا کہ اپریل میں جو اپریل گزر چکا ہے اس میں اعظم زید تارڑ صاحب سپریم کورٹ سے ایک دن باہر نکل رہے تھے, تو میرے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھی رپورٹر تھے, ایک چینل کے لیے کام کرتے ہیں, میں اور وہ انہیں پکڑ لیا وہاں پر سپریم کورٹ کے باہر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آئینی امینڈمنٹ کے حوالے سے جو آپ پیکج لا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پیکج لا رہے ہیں جوڈیشل پیکج, اور اس میں عمر کے لحاظ سے, عمر کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم سپریم کورٹ کے ججز کی جو عمر ہے وہ بڑھا رہے ہیں, پھر ہائی کورٹ کے ججز کی. میں نے ان سے پوچھا کہ جی جو آپ پیکج لا رہے ہیں اس میں سب چیفز کی عمر جو ہے بڑھائی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے ہم اسی طرف لا رہے ہیں. لیکن یہ ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ انہوں نے بات کی تھی ثناء اللہ صاحب اپریل میں, جب یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد سے حکومت, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ثناء اللہ صاحب کہ وہ تذبذب کا شکار ہے کہ ہم اس پیکج کو لائیں نہ لائیں. لیکن ابھی جو نور عالم خان صاحب لے کر پیکج, وہ کل جس طرح کہا گیا ڈرافٹ کیا گیا پیکج, یہ اپریل میں ایک پیکج ڈرافٹ ہوا تھا, ایک وہ کوئی 20 کے قریب اس میں نکات تھے. وہ نہ اٹارنی جنرل پاکستان نے ڈرافٹ کیا تھا, نہ اعظم زید تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں, اور نہ کسی اور جو نون لیگ کے حکومتی وکیل ہیں ان میں سے کسی نے, بلکہ کہیں اور سے وہ
पैकेज ड्राफ्ट कोई आया था, और वो जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के सामने वो भी पहुंच चुका था, उसके बाद जो सारा फिर फैसला हुआ, और फिर मखसूस शिस्तों का फैसला आने के बाद हुकूमत बैकफुट पर गई है, लेकिन उनकी पूरी मर्जी थी कि वो उसको लाएं। अभी जिस तरह वो कह रहे हैं जी कि ये इसमें जो 12-13 चीज़ें लेकर आ रहा है, जिसमें कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बलियों की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने। नकी साहब, आपको बताऊं कि 2015 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा है, जस्टिस काजी फाइसा का एक फैसला है, इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया हुआ है वो फैसला, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि वो तमाम चीजें जिस पर अदलिया की आजादी और उसके कदगन पर कोई भी, उन्होंने कहा उस फैसले में लिखा हुआ है कि आईनी तरमीम भी आएगी तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। बल्कि इवन आपको याद होगा कि इन्होंने फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम भी स्ट्राइक डाउन की हुई है। जब ये पैकेज लाया जाएगा, या अभी तो हुकूमत सिर्फ बातें कर रही है ना, अभी तक इस तरह की कोई चीज ड्राफ्ट नहीं हुई। ये जो आज खबर चली है साहब, आज मुख्तलिफ चैनल्स की जीनत बनी है, ये खबर मुख्तलिफ सतह पे गर्दिश कर रही है, और उसमें यह कहा गया है कि 1997 के एक्ट में तरमीम करके नहीं, और मैं इस तरफ आता हूँ। हुकूमत असल में ये चाहती है इस वक्त कि अदलिया को जेर दाम लाया जाए, लेकिन वो मखसूस चीज़ों का फैसला आने के बाद हुकूमत वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि 2/3 अक्सियत इनके पास मौजूद नहीं है, ना सेनेट में इनके पास मौजूद है, ना कौमी असम्बली में। सनाउल्लाह साहब ठीक कह रहे हैं कि 30-40 लोग आजाद अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखिए जो शॉर्ट ऑर्डर आया है ना मखसूस शिस्तों के हवाले से, इसमें भी वो आजाद अरकान की बात नहीं की हुई है, इसमें वो तमाम रास्ते बंद किए हुए शॉर्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके लिए ये कहें कि हम कुछ लोग अपने साथ मिला लें, फिर वो 63 आप पर लगेगा, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकेगा। ठीक है, अच्छा, इसी पे फयाज महमूद साहब आपसे जानना चाहता हूं कि ये फिर बात कहां से सामने आई? जैसे 2/3 से ज्यादा आइन साजी के हवाले से तो नहीं है, लेकिन नकी साहब ये गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। इस वक्त जजेस भी, हमारी अदलिया भी माजरत के साथ तकसीम है इस वक्त, और वो जो कमिंग चीफ जस्टिस है जस्टिस मंसूर शाह, पिछले दिनों मेरी खबर जो है वो ये है कि कुछ हुकूमती जुमा ने उनसे मुलाकात की और कुछ उनसे मामला डिस्कस किए, और फिर ये हुकूमत के टैक्स होते हैं प्रेशराइज करने के लिए कि जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं कि वो शायद कुछ लो दो की बात करें, और वो फिर इस तरह के वो टैक्स होते हैं ताकि उनको किसी एक खास मुद्दे पर लाया जाए। ठीक है, अच्छा, मैं फयाज महमूद साहब, एक तो इस खबर के हवाले से जाहिर है ये एक बड़ा सवाल है कि ये बात कहां से और क्यों हमारे पास जो है वो सामने आती है। और जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ अभी सनाउल्लाह खान साहब ने भी एक बात की है कि ये कहा गया था कि एक मुसवदा लाया जा रहा है, और बाकायदा तौर पर एक बड़े इदारे, जिम्मेदार इदारे की जानिब से बाकायदा वहाँ पे एक हमारे मारूफ रिपोर्टर ने उन्होंने कहा कि ये मेरे इल्म में है, उन्होंने ये बात की, और ये खबरें सामने आती रहती हैं, और कुछ खबरें जो है वो ज़ाहिर स्ट्राइक डाउन भी हो जाती हैं। लेकिन इस खबर के मुताबिक आप क्या समझते हैं? क्या इसमें कोई आप आईनी कानूनी पेचीदगी देख रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मौजूदा जो इस वक्त हमारे पास पार्लियामेंट में सूरत हाल है उसमें मुमकिन है कि नहीं है? देखिए नकी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह साहब बड़े हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक उनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त तक जो ये खबर सामने आ रही है इसमें कोई ऑफिशियल लेवल पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की समटाइम पॉलिसीज होती हैं कि वो लास्ट टाइम तक अपने जो कार्ड्स है वो शो नहीं किए जाते, लेकिन मैंने खुद आज जब ये चीज एक सामने आई तो मैंने भी फिर अपने सोर्सेज को टेलीफोन घुमाना शुरू किए कि मैंने कहा चले कोई ऑथेंटिक चीज हमारे हाथ आ जाए। तो अभी तक मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। देखिए, जो एडहॉक जजेस लगाने थे वो लगा दिए गए, और अभी जजेस की तादाद जब बढ़ाई जाएगी तो तभी बात होगी जब कोई ऑफिशियल लेवल पे कंफर्मेशन आएगी। अभी तक तो ऐसी कोई कंफर्मेशन आई नहीं। लेकिन आपने कहा कि ये खबरें कौन निकालता है, तो ठीक है, ये नर्व्स चेक करने के लिए चूहे छोड़े जाते हैं, और ये दोनों इतराफ से ही छोड़े जाते हैं। कभी हमें जो है दूसरी साइड बताती है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है, ये एक्सटेंशन वो ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे जर्नलिस्ट ही हैं वो अपनी अखबार में या अपनी खबर में तो वो खबर की तरदीद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले खबर दी होती है, लेकिन यूट्यूब पे जब आते हैं तो वो अपनी खबर पे कायम रहते हैं। लेकिन आज तक कोई एक्सटेंशन फिलहाल नहीं हुई, ये बात समझने की है, जो अभी तक एक्सटेंशन हुई नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो चूहे छोड़े जाते हैं नर्व चेक करने के लिए, रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कि रिस्पॉन्स क्या आता है। बाकी रही बात, अगर तादाद बढ़ाई जाती है और हुकूमत समझती है कि ये तादाद बढ़ानी है तो उसके लिए जाहिर है उन्हें एक पूरा जो आईनी तरमीम लानी पड़ेंगी, उसके लिए उन्हें अपनी स्ट्रेंथ भी शो करनी पड़ेगी। तो शायद
मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें जो हुई हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, ये उन्हीं का हिस्सा ही है। और जो तरमीम आनी है या जो कानून साजी होनी है वो तब तक मुमकिन नहीं हो सकेगी जब तक मौलाना साहब जो है वो हाँ या ना कर दे। तो अभी तक जो मेरी इत्तलात है, मौलाना साहब बिल्कुल इनकारी हैं, वो किसी बात पे आने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, जो आज हुकूमत में है वो उनके इत्तेहादी थे और उन इत्तेहादियों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और खुद वो आज इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो है वो धोखा दिया गया। अभी पिछले दिनों में आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी जो स्पीड पावर है, स्पीड की जो स्ट्रेंथ है, वो पीटीआई को भी देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं इस दफा इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून जब मुश्किल वक्त के गुजर रही थी, जब उसको जो है वो डंडे मारे जा रहे थे और हर हवाले से उन्हें दीवार से लगाया हुआ था, तो तब मौलाना फजलुर रहमान की स्पीड पावर को मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा कि जब एक लॉन्ग मार्च लेके आए थे हमजा शहबाज साहब और मरीम नवाज साहब, दिया गया था, यकीनन वो बहुत बड़ा इंप्रेसिव नहीं था। तो यहाँ पर आके स्टेज पे मौलाना फजलुर रहमान के स्टेज पे शहबाज शरीफ भी खड़े हुए थे, सारे ये लीडरान खड़े हुए थे। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में गेम है, वो जब तक हाँ या ना नहीं करेंगे तो ये कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब इसमें सलमान अनीस साहब, आपके नजदीक आप क्या समझते हैं? एक बात का जवाब, एक बात का जी, ये जो वो हुकूमत की तरफ से दनियाल तनवीर साहब ला रहे थे ना, जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो बिल मूव कर रहे थे, जी जी, राना सनाउल्लाह ने थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया कि जी हम कोई इस तरह की चीज नहीं ला रहे, कोई प्राइवेट अगर मेंबर लाता है तो फिर हम देख लेंगे, नहीं तो हम उसे स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ये बात राना जो सनाउल्लाह साहब जहां बैठे हुए हमारे, उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। वो नूर आलम खान का भी एक वो बिल है, उस पर भी उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है, वो रिव्यू के हवाले से है। अच्छा, मैं थोड़ा सलमान साहब आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी एपेक्स कोर्ट में या हमारी हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत है? ज़ेर इल्तिवा केसेस के हवाले से आमतौर पर यह बहस सामने आती है, और ये जो इस वक्त बात सामने आ रही है, क्या इसके पीछे भी वही मुहर्रिकात हैं या कुछ और वजूहात हो सकती हैं? दोनों वजूहात हैं। नंबर एक, जिस चीज़ का आपने सबसे पहले जिक्र किया है वो ये है कि जो आपकी हायर कोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, तकरीबन 60,000 के करीब केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो जाहिर है एक नेचुरल प्रेशर आपकी कोर्ट्स के ऊपर है। अब क्योंकि जो फेडरल कोर्ट्स और जो आप सुप्रीम कोर्ट, आपकी हाई कोर्ट्स और जो फेडरल शरीयत कोर्ट है, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है। उसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो थोड़ा सा मामला जो है वो सूबों की तरफ जाता है। तो जाहिर है ये जो प्रेशर है ये ऊपर की जुडिशरी पे भी है और नीचे की जुडिशरी पे भी है। तो दिस इज़ फॉर श्योर के जजेस ज़्यादा होने चाहिए, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट्स में, इसलिए क्योंकि जो सूबों के अंदर जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, ख़ास तौर पे पंजाब हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अंदर। लाइकवाइज इस पे एक और भी चीज़ जो है वो कंसिडर होनी चाहिए, और वो ये है कि जो आपके लॉयर्स हैं उनको एलिवेट करके जो आपका ज्यूरिस्ट या जुडिशल सिस्टम है उसका हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि आपकी जो जुडिशरी है उसमें एक वाइब्रेंट और जो एनर्जेटिक ज्यूरिस्ट माइंड है उनको एक मौका मिले और वो बेहतर फैसले कर सकें, और उसके अंदर स्पीड और मोटिवेशन का फैक्टर जो है वो भी ऐड हो। प्रैक्टिस तो यही है ना वैसे। जी बिल्कुल, मेन पर्पस तो तकरीबन इसका यही है। तीसरा जो पॉइंट आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो शाजी जरा जो है ना गौर तलब है, वो ये है कि हमने देखा है कि जो गुज़िश्ता साल हैं उसमें जो हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट थी वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। उसमें जो आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और जो पॉलिटिकल इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो आपका मुक्तदरा है जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उनकी इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बरमला जो है वो इजहार किया है। तो हमें आगे आने वाले जजेस की जो तादाद बढ़ाएं या आप जिस तरह भी उन वैकेंसीज को फिल करें, एक चीज़ को ज़रूर यकीनी बनाना होगा कि ये जो हमने पार्टिजान कल्चर शुरू किया है ना कि जजेस जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या उनका टिल्ट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा है, उससे जो मुल्क का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। हमने जो गुज़िश्ता ये केसेस चल रहे हैं और जिस तरह अभी जो मामलात कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं उसमें जो ये सारी चहम गोइयाँ हो रही हैं, ये जो सारी पीछे बातचीत चल रही है वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि जो जजेस का रोल है वो बहुत क्वेश्चनेबल हो गया हुआ है, चाहे वो आपके मौजूदा चीफ हों या आपके मुस्तकबिल में आने वाले चीफ हों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ इसमें सिर्फ ऐड कर लीजिएगा, जहाँ तक बात हो रही है कि जजेस की एज की एक्सटेंशन होगी, कोशिश की जाएगी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको किसी तरीके से रिटेन कर लिया जाए। इसमें
اب پینلسٹ بھی ہمارے تھوڑا سا ڈسکس کر سکیں گے. اگر آپ کو یاد ہو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپوائنٹمنٹ تھی تو وہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی جو ہے وہ اناؤنس بھی کر دی گئی تھی. 3 مہینہ پہلے جی تصحیح کا شکریہ, وہ نوٹیفیکیشن اس کا نکال دیا تھا. اب یہ جو ساری کی ساری ہماری ڈسکشن چل رہی ہے وہ اس وجہ سے چل رہی ہے اور یہ کنفیوژن اس وجہ سے پریویل کری ہے کہ اس طرح کا کوئی نوٹس بھی گورنمنٹ کی طرف سے سامنے نہیں آیا. تو فور روم فار اسپیکولیشن بہت زیادہ ہے اینڈ پیپل آر اسپیکولیٹنگ ایز یو کین سی. ٹاک شوز کی زینت بنا ہوا ہے یہ موضوع, تو یقیناً بات چیت تو اس پہ جاری ہے. نہیں, یقیناً ظاہر ہے اس کی صحت کے حوالے سے بھی ہم نے کھل کے بات کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو کیس کا معاملہ تھا اس میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کی بات تھی, اس پہ فیصلہ محفوظ کیا گیا. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا.